RSS is a, you can call it a secret society. It's built along the lines of the Muslim Brotherhood, and the idea is to use the democratic contest to come to power and then subvert the democratic contest afterwards. राहुल गांधी इन दिनों लंदन में हैं और भारत जोड़ो यात्रा के बाद एक एक दिन बीजेपी पर और आरएसएस पर हमला बने। लेकिन इस बार राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस की तुलना मुस्लिम ब्रदरहुड से की है। मिस्र में खून की नदियां बहाकर सत्ता में पहुंचने वाला मुस्लिम ब्रदरहुड से तुलना की है। मुस्लिम ब्रदरहुड की कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि किस तरह से वो नियम को पहले देखा, उसके बाद धीरे धीरे सत्ता पर काबिज हुआ। यानी नियम को मानना पहले शुरू किया था, उस तौर तरीकों में ढलना शुरू किया और उसके बाद वहां खून की नदियां बहाकर सत्ता में काबिज हुआ। आज आपको इस वीडियो में मुस्लिम ब्रदरहुड की पूरी कहानी बताएंगे, लेकिन इससे पहले आपको सुनवाते हैं कि राहुल गांधी ने लंदन स्थित थिंक टैंक चैथम हाउस में क्या कुछ कहा। When I joined politics 2004, the democratic contest in India used to be between political parties. And I had never imagined at that time that the nature of the contest would change completely. It was. I mean, if you had even told me at that time, I would have said that it was a ridiculous thing to say. But the nature of the democratic contest in India has completely changed, and the reason it's changed is because one organization called the RSS, fundamentalist fascist organization, has basically captured pretty much all of India's institutions. And maybe for those who don't know, can you explain what the RSS is? RSS is a, you can call it a secret society. It's built along the lines of the Muslim Brotherhood, and the idea is to use the democratic contest to come to power and then subvert the democratic contest afterwards. And it shocked me at how successful they've been at capturing the different institutions of our country. The press, the judiciary, parliament, election commission, all the institutions are under pressure, under threat, and controlled in one way or the other. So the conversation, the voice that was free-flowing, the debates, those have all stopped. Some of the biggest decisions taken, demonetization, which is demonetization of the Indian currency, we were not allowed to debate in Parliament. Right? The farmers' bills, where large numbers of farmers were out in the street, we were not allowed a conversation in Parliament. The GST, we were not allowed. When Chinese troops entered our territory, we were not allowed to have a conversation in Parliament. So that stifling made us ask ourselves a fundamental question. How do we communicate with the people of India when the media is biased, when the institutions are captured? And the answer we came up with in the Congress Party was this walk across the country, which राहुल गांधी ने कहा कि भारत में डेमोक्रेटिक कंपटीशन का तरीका पूरी तरह से बदल गया है। इसका कारण आरएसएस नामक एक संगठन है। यह एक कट्टरपंथी और फांसीवादी संगठन है जिसने भारत की लगभग सभी संस्थाओं पर कब्जा कर लिया है। राहुल गांधी ने लंदन में यह बयान दिया, बीजेपी हमेशा सत्ता में नहीं रहेगा, देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म किया जा रहा है, आरएसएस मुस्लिम ब्रदरहुड की तर्ज पर बना हुआ है। राहुल गांधी ने कहा कि देश में एक नैरेटिव चल रहा है कि कोई भी बीजेपी को हरा नहीं सकता। उन्होंने कहा कि यह बात मुझे अंदर से झकझोर देती है कि कैसे देश के विभिन्न संस्थाओं पर कब्जा किया जा रहा है, चाहे वो प्रेस हो, न्यायपालिका हो, संसद हो या फिर चुनाव आयोग हो, सभी खतरे में है, किसी न किसी तरह से नियंत्रित किया जा रहा है।
लेकिन राहुल गांधी ने जिस ब्रदरहुड, मुस्लिम ब्रदरहुड की तुलना आरएसएस और बीजेपी से की है, अब आपको उसकी पूरी कहानी बताते हैं। मिस्र के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद मुर्सी के मुस्लिम ब्रदरहुड का इतिहास बहुत ही उतार चढ़ाव का रहा है। इसे कई बार प्रतिबंधों का सामना भी करना पड़ा। मुस्लिम ब्रदरहुड ने 1952 में कर्नल गमाल अब्दुल नासिर और उनके सहयोगियों द्वारा राजशाही को समाप्त करने का समर्थन किया था। इससे पहले उसने राष्ट्रवादी आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रदरहुड के संबंध नाजियों से भी रहे। नवंबर 1948 में बम विस्फोटों और हत्या के कई प्रयासों के बाद मिस्र सरकार ने ब्रदरहुड के सीक्रेट एयरटस में 32 नेताओं को गिरफ्तार करके संगठन पर प्रतिबंध लगा दिया। जब ब्रदरहुड पर प्रतिबंध लगा तो उसकी लगभग 2000 शाखाएं और 5 लाख समर्थक थे। कुछ महीने में ही ब्रदरहुड ने मिस्र के प्रधानमंत्री की हत्या करवा दी थी, जिसके बाद संगठन के संस्थापक हसन अल बन्ना की भी हत्या हो गई। बन्ना एक शिक्षक थे और जिंदगी के हर पहलू पर शरिया कानून लागू किए जाने के समर्थक। उन्होंने 1928 में मुस्लिम ब्रदरहुड की स्थापना की। वह चाहते थे कि सरकार शरिया लागू करे। संगठन ने 1939 में कुछ समय तक शिक्षा धर्मादा कार्यों पर जोर दिया, लेकिन बाद में वह एक राजनीतिक शक्ति बन गया। 1954 में संगठन ने कर्नल गमाल अब्दुल नासिर की हत्या की कोशिश की, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली, जिसके बाद संगठन पर प्रतिबंध लगा। इसके हजारों सदस्यों को जेल में डाल दिया गया। सदस्यों को यातनाएं भी झेलनी पड़ी, जिसके बाद मिस्र के राष्ट्रपति होस्नी मुबारक ने प्रतिबंधित ब्रदरहुड को संसद और श्रमिक संगठनों के चुनाव में भाग लेने की अनुमति दे दी। अप्रैल 2011 में संगठन ने फ्रीडम और जस्टिस पार्टी का गठन किया। पार्टी मिशन और लक्ष्य पुराना था, लेकिन भूमिका नई थी। 24 जून 2011 को मोहम्मद मुर्सी लोकतांत्रिक ढंग से राष्ट्रपति चुने गए। लेकिन अब आपको यह भी जानना जरूरी होगा सिलसिलेवार तरीके से कि कैसे सत्ता में काबिज हुआ और इसका अंत कैसे हुआ। मुस्लिम ब्रदरहुड कैसे सत्ता में आई और अंत कैसे हुआ, ये जान लेते हैं। ये बात शुरू होती है, मुस्लिम ब्रदरहुड को कई देश आतंकी संगठन भी मानते हैं। मुस्लिम ब्रदरहुड मिस्र का सबसे पुराना और सबसे बड़ा इस्लामिक संगठन है। इसे इख्वान अल मुस्लिमीन के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना 1928 में हसन अल बन्ना ने की थी। मुस्लिम ब्रदरहुड का एक मुख्य मकसद है कि देश का शासन इस्लामी कानून यानी शरिया के आधार पर चलाना है। अरब देशों में एक्टिव इस संगठन पर आतंकवाद को बढ़ावा देने का भी आरोप लगता रहा है। यही नहीं, अल कायदा और मुस्लिम ब्रदरहुड का आतंकी चेहरा माना जाता रहा है। समय समय पर दोनों के लिंक सामने भी आते रहे हैं। आतंकी संगठन अल कायदा के पूर्व प्रमुख और 9/11 अमेरिकी हमले के मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन भी पहले मुस्लिम ब्रदरहुड का सदस्य हुआ करता था। स्थापना के बाद मुस्लिम ब्रदरहुड संगठन ने कई देशों में इस्लामी संगठनों को, इस्लामी आंदोलनों को काफी प्रभावित किया और मध्य पूर्व के कई देशों में इसके सदस्य हैं। शुरुआती दौर में इस आंदोलन का मकसद इस्लाम के नैतिक मूल्यों और अच्छे कामों का प्रचार करना था, लेकिन जल्द ही मुस्लिम ब्रदरहुड राजनीति में शामिल हो गया। मिस्र में इस संगठन को फिलहाल अवैध करार दिया जा चुका है। मुस्लिम ब्रदरहुड को सबसे बड़ी सफलता भी इसी देश में मिली। संगठन ने कई दशक तक सत्ता पर काबिज रहे राष्ट्रपति होस्नी मुबारक को बेदखल करने में भूमिका निभाई। जन आंदोलनों की वजह से फरवरी 2011 में होस्नी मुबारक को सत्ता से हटना पड़ा था। उस आंदोलन में मुस्लिम ब्रदरहुड की ओर मोहम्मद मुर्सी विरोध का चेहरा बने थे। आपको यह भी बता दें कि 1940 में ही इस संगठन की संख्या 20 लाख तक पहुंच गई थी। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक यही वजह है कि संगठन के संस्थापक बन्ना ने एक हथियारबंद दस्ते का भी गठन किया, जिसका मकसद ब्रिटिश शासन के खिलाफ बमबारी और हत्याओं को अंजाम देना था। मुस्लिम ब्रदरहुड का सबसे चर्चित नारा है इस्लाम इज द सॉल्यूशन, मतलब इस्लाम ही समाधान है। सन 1948 में हसन अल बन्ना की एक अज्ञात बंदूकधारी ने हत्या कर दी और 1948 में मिस्र की सरकार ने ब्रितानी लोगों पर हमले और यहूदियों के हितों को देखते हुए इस संगठन को भंग कर दिया। 1952 में सैन्य विद्रोह के साथ ही मिस्र में औपनिवेशिक शासन का अंत हो गया।
कुछ सैन्य अधिकारियों ने आजाद अधिकारी घोषित कर दिया। 1954 में मिस्र के राष्ट्रपति गमाल अब्देल नासिर के हत्या के असफल प्रयास के बाद मुस्लिम ब्रदरहुड को प्रतिबंधित कर दिया गया। इसके बाद संगठन के सदस्यों को अंडरग्राउंड होना पड़ा। मुस्लिम ब्रदरहुड ने मिस्र की राजनीति में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। 1980 में इस संगठन ने राजनीति में फिर से वापसी की कोशिश की, कई बार दूसरी पार्टियों के साथ गठबंधन में किया। वहीं 2000 में 17 सीटें जीतकर वह मिस्र की प्रमुख विपक्षी पार्टी भी बन गई। इसके बाद उस समय के राष्ट्रपति होस्नी मुबारक ने मुस्लिम ब्रदरहुड को खत्म करने की काफी कोशिश की। हालांकि इसका यह दांव उल्टा पड़ गया और आखिरकार आंदोलन के बाद 2011 में उन्हें 30 साल की सत्ता से हटना पड़ा। आपको जानकर हैरानी होगी कि मिस्र के अलावा दूसरे इस्लामी देश में भी मुस्लिम ब्रदरहुड का काफी प्रभाव है। 2011 के अंत में ट्यूनीशिया के एनान हादा पार्टी, मुस्लिम ब्रदरहुड द्वारा प्रेरित एक इस्लामिक पार्टी है, ने राष्ट्रपति जैनुल अबिदीन बिन अली को उखाड़ फेंकने के बाद देश में होने वाले पहले संसदीय चुनाव जीता था। मिस्र में मुस्लिम ब्रदरहुड के सर्वोच्च नेता मोहम्मद बदी हैं, जो वर्तमान में जेल में हैं। उन्होंने कई आरोपों के तहत मौत की सजा सुनाई गई है। और वहीं होस्नी मुबारक के हटने पर मुस्लिम ब्रदरहुड के मोहम्मद मुर्सी राष्ट्रपति चुने गए। 2013 में मिस्र की सेना ने बगावत कर दिया और मुर्सी को सत्ता से बेदखल करके जेल में डाल दिया गया। इसके बाद मुस्लिम ब्रदरहुड पर कई पाबंदियां लगाई गई। सरकार ने मुस्लिम ब्रदरहुड के खिलाफ दमन चक्र चलाया। इसके सैकड़ों सदस्यों को पकड़ लिया गया। साथ ही संविधान में बदलाव भी किया गया। आखिरकार 30 सालों से सत्ता का सुख भोग रहे होस्नी मुबारक के शासन का अंत हो गया। मुबारक को क्रांति के दौरान प्रदर्शनकारियों को जान से मारने के आदेशों को न रोक पाने का दोषी पाया गया। उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के अभियोग भी चल रहे हैं। अदालत ने जून 2012 में उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। और इसी साल सबकी नजर मिस्र की होने वाले चुनाव पर थी और देखना अब ये होगा कि सत्तारूढ़ सत्ता में कितने करीब पहुंचता है। लोग ये सोच रहे थे। मुस्लिम ब्रदरहुड के संबंध लेबनान स्थित शिया चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह और कट्टरपंथी फिलिस्तीनी संगठन हमास जैसे संगठनों से भी है, जिसके कारण अमेरिका के साथ ब्रदरहुड के रिश्ते बेहद खराब हैं। और यही कारण है कि जब पश्चिम या अमेरिका के नेता मिस्र में सत्ता में बदलाव की बात करते हैं तो वो चाहते हैं कि सत्ता मुस्लिम ब्रदरहुड के हाथ में न चली जाए। बहरीन, मिस्र, रूस, सऊदी अरब, सीरिया और संयुक्त अरब अमीरात मुस्लिम ब्रदरहुड को आतंकी संगठन मानते हैं। इसके बावजूद कई इस्लामी देशों में मुस्लिम ब्रदरहुड के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर से जुड़ी हुई पार्टियां राजनीति में है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका भी मुस्लिम ब्रदरहुड के आतंकी संगठन घोषित कर चुका है। जॉर्डन में मुस्लिम ब्रदरहुड पार्टी इस्लामिक एक्शन फ्रंट यानी IF के नाम से मौजूद थी, लेकिन 2013 में IF ने MB से अपना नाता तोड़ लिया। और अब राहुल गांधी ने इसी मुस्लिम ब्रदरहुड की तुलना अब भारत के बीजेपी और RSS से कर दी, जिस पर बवाल भी मचना तय है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।